Hello everyone and welcome to another lecture of Power Systems 2 with AKTU subject code as KEE 601. My name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in BBD NIIT Lucknow. We were discussing in the previous lectures how to use any one line diagram for analysis by converting that diagram into an impedance or a reactance diagram. The second thing which we resolved was कि in every power system there are various number of equipments and all of them are some of the other equipment are working on the different voltages level. So for analysis we have utilized per unit system which will reduce our issue of searching every time whether the equipment is 3-phase equipment or single phase, what is its voltage level, what is the power level. Irrespective of that worry, we can simply make a diagram, use that diagram to represent a reactance diagram or which is a network of interconnections, of electrical interconnections of all those elements which is represented in the diagram through their equivalent representation. After that, we convert all the values in per unit system such that the deduction of any branch voltage or branch current or impedance at any place is quite easy for us. So let us proceed further and discuss more about what the term is about impedance diagram and what is this term reactance diagram. So let us discuss how are we going to formulate impedance diagram. First things first. Whenever we have a single line diagram in front of us and we are asked to draw an impedance diagram, the first thing which is to be kept in mind is to select a base for the system. What we have discussed in the previous lecture that whenever we have to select a base, we select MVA and KVA base. मतलब पावर और वोल्टेज का बेस सेलेक्ट करते हैं. तो एक अप्रोप्रिएट सा बेस वैल्यू पूरे सिस्टम के लिए हम लोग सेलेक्ट करें. टास्क नंबर 1 किसी भी वन लाइन डायग्राम को देखकर सबसे पहला टास्क है ये. उसके बाद जो भी हमारा सिस्टम है उसको हम वेरियस सेगमेंट्स में ब्रेक कर लें. जैसे जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफॉर्मर्स है, ताकि हम क्या कर सकें, हर एक सेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट बेस वोल्टेजेस का कंसिडरेशन कर सकें. क्योंकि हमने पहले ही ये बात डिस्कस की है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वन वोल्टेज बेस विल बी रेफरेंस फॉर द इंटायर सिस्टम. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो वी हैव टू डिवाइड इन सेगमेंट्स जहां हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि हाँ ये ट्रांसफार्मर ही है, इसका वोल्टेज लेवल सेम रख सकते हैं क्योंकि जनरेटर से मैच, या ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर का सेम रख सकते हैं. तो क्या हैंडलिंग होती है इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें. ठीक है. जैसे ही ये डिवीजन हो जाए हम लोग क्या करेंगे, एवरी सिंगल रिएक्टेंस और एवरी सिंगल रेजिस्टेंस यानी इंटायर इम्पीडेंस की कैलकुलेशन करेंगे पर यूनिट के क्वांटिटीज में. एक बार वो कैलकुलेशन हो गई, उसके बाद जिस फॉर्मेट में वन लाइन डायग्राम में इंटरकनेक्शन हुआ था उसी फॉर्मेट में उस इक्विपमेंट का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं और उसी फॉर्मेट में इंटरकनेक्शन करते चले जाएं. तो रिजल्टेंट डायग्राम जो हमें मिलेगा वो होगा सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन और वो कहलाएगा पर यूनिट सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन इम्पीडेंस डायग्राम. सो दिस इज अ रफ लेआउट वेयर वी draw the impedance diagram. We have already discussed what are the approximations. अप्रोक्सीमेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले ही लेक्चर में कि जब हम रिएक्टेंस डायग्राम या इम्पीडेंस डायग्राम बनाते हैं तो ग्राउंडिंग इम्पीडेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं. ट्रांसफार्मर के शंट में जो लॉसेस है, मैग्नेटाइजिंग लॉस एंड कोर लॉस, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट ऑल्सो. ट्रांसमिशन लाइन्स में जो शंट ब्रांचेस हैं उसके एडमिटेंसेस को भी हम कंसिडर या इम्पीडेंस को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. We can see an example here. Here we have two diagrams displayed on the screen. One side we are having a rough sketch of a one line diagram. From that one line diagram we have tried to draw equivalent reactance diagram or impedance diagram from while referring a rough estimation of reference of that figure. रफ एस्टिमेशन बोलने का सिर्फ मतलब इतना है कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ नहीं मेंशन्ड है. तो हम लोग अभी केवल ये
यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि अगर हमारे पास एक वन लाइन डायग्राम बना हुआ है तो पहले तो हम इंटरकनेक्शन करते ही कैसे हैं, एक बार इंटरकनेक्शन सीख लें, फिर कैलकुलेशन के लिए तो वी आर अवेयर कि वी हैव टू सॉल्व इट थ्रू पर यूनिट सिस्टम, and we have also seen few examples of how to solve various values when we have given a particular value of base and of impedance of voltage and as power as well. ठीक है, तो हम कैलकुलेशन तो जानते हैं, अप्लाई कर लेंगे। पहले ये तो सीखें कि अगर वन लाइन डायग्राम दिख रहा है, उस वन लाइन डायग्राम से इम्पिडेंस डायग्राम तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो क्या बोला था हम लोगों ने, पहुंचने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं उस ऑर्डर में जाते जाएं, और जो भी एलिमेंट हमें या जो भी इक्विपमेंट मिले उसका वन फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर लें। चलो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट अस सी हियर, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जनरेटर, रोटेटिंग मशीन। ठीक है, इट इज अ रोटेटिंग मशीन, we are assuming it to be a generator, it can be a motor as well, that information can be shared। रोटेटिंग मशीन गिवन है, रोटेटिंग मशीन 3 फेज की है और वो सॉलिडली रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होल्ड कर रही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राउंडिंग इम्पिडेंसेस हमें इग्नोर करने हैं। तो ये 3 फेज रोटेटिंग मशीन है, सिंक्रोनस जनरेटर ही होगा फॉर जनरेटिंग है तो ट्रांसमिशन पावर सिस्टम्स में। सो अगर ये सिंक्रोनस जनरेटर है और हम लोग कन्वेंशनल सिंक्रोनस जनरेटर 3 फेज के हैं और हम इसे सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन लें, तो हम क्या बोलते हैं, मशीन हैज टोल्ड अस इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन, या इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ फेज इन अ जनरेटर, वी रिप्रेजेंट इट बाय its impedance and by the voltage of that particular line. So let's write it as generator number 1 का impedance which is combination of resistance and reactance as well as its voltage. तो generator number 1 का voltage को हमने represent कर दिया, it is plus minus voltage is being represented here. generator number 1 का resistance mention कर दिया और जनरेटर नंबर 1 का रिएक्टेंस मेंशन कर दिया। ये हम इम्पिडेंस डायग्राम बना रहे हैं। अगर यही हम रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे होते तो रेजिस्टेंसेस को भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग अ लेआउट, पहला एलिमेंट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये बस बार दिख रही है हमें, इसके साथ हमारे साथ दूसरा क्या कनेक्टेड है, जनरेटर नंबर 2 कनेक्टेड है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड देखिए आप, जनरेटर नंबर 2, ये भी कुछ ग्राउंडिंग होल्ड कर रहा है विच इज रिएक्टिव ग्राउंडिंग अगेन। बट अगेन हमने ये कहा है कि हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम में ग्राउंडिंग इम्पिडेंसेस को यूज नहीं करेंगे। अब ये 3 फेज जनरेटर को भी क्या करें, हम वापस से सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन लें। फिर ये सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन कैसा होल्ड करेगा, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, 1 रेजिस्टेंस Rg2 एंड 1 रिएक्टेंस Xg2, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। उसी बस बार से तीसरा एक क्या कनेक्टेड है, एक लोड भी कनेक्टेड है। एंड व्हेन इट इज अ लोड and it is not having any rotating machine, we only represent that load with impedances. So here we have represented load impedance and load resistance. ठीक है, ये बस बार के इस साइड के तीनों इक्विपमेंट्स ड्रॉ हो गए। उसके बाद क्या बन रहा है, हमें दिख रहा है ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। अगर हम जनरल फॉर्मेट में ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा होता है, प्राइमरी साइड पे रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रिएक्टेंस, और शंट में क्या मेंशन्ड होता है, मैग्नेटाइजिंग सर्किट। ठीक है, तो वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर दिया। इसके जस्ट बाद आपको देखिए ब्लैक कलर की सी लाइन दिख रही होगी विच इज डिपेक्टिंग अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन इसलिए हो सकता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट्सएवर बी द केस, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एरिया कवर कर रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइंस को कैसे इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करें, तो वी हैव स्टडीड, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ टी और इन फॉर्म ऑफ पाई मॉडल। Commonly used methodology is to represent it in pi model. So if we are representing this transmission line in pi model, what we can see here, this portion is of transmission line. Pi model है ये,
पाई के फॉर्मेट में। शंट ब्रांचेस में, ट्रांसमिशन लाइंस में कैपेसिटेंसेस लगते हैं, मेंशन है। सीरीज में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगता है, मेंशनड है। जैसे ही ये ट्रांसमिशन लाइन पार हुई, क्या दिख रहा है हमें? ट्रांसफार्मर नंबर 2। ट्रांसफार्मर नंबर 2 का फिर से इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए। ट्रांसफार्मर नंबर 2 के इक्विवेलेंट डायग्राम में फिर से प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस और मैग्नेटाइजेशन सर्किट कोर लॉसेस को शो करने के लिए और मैग्नेटाइजेशन लॉसेस को शो करने के लिए लॉसेस का एलिमेंट मेंशन्ड है। ट्रांसफार्मर नंबर 2 भी बन गया। अगला इक्विपमेंट कहाँ पहुंच गया? हम क्या कर रहे हैं? केवल फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट आ रहा है उसका इक्विवेलेंट डायग्राम उसी एरे ऑफ अरेंजमेंट में कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। अगला इंटरकनेक्शन किससे है? इस बस बार के थ्रू तीसरे रोटेटिंग मशीन से। मान लेते हैं जनरेटर। Let us assume this given thing is generator. If it is been a motor, then also we'll have to represent it with respect to voltage and impedance also. So there is no big change, but for the directions. So see here, this is again equivalent diagram of generator represented in single phase format. एक phase impedance का resistance और reactance. Lastly क्या बच गया? Load number B. Load number B को कैसे represent कर सकते हैं? लोड अगर मशीन्स को यूज नहीं कर रहा है तो सिंपली इंपिडेंसेस के फॉर्मेट में, तो सी हियर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब और सिंप्लीफाई करने की बात करें तो ट्रांसफार्मर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी विल डू, रेफर टू प्राइमरी और शंट में जो लॉसेस हैं वो इग्नोर कर दें। तो ये डायग्राम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखते हैं। जनरेटर नंबर 1 का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सेम है, EG1 लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, RG1 XG1। जनरेटर नंबर 1 में तो कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली जनरेटर नंबर 2 में भी कोई चेंज नहीं है। इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हमने क्लियरली लिख रखा है। सिमिलरली लोड नंबर A में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लोड A का भी हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक है, यहां तक की सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए भी हमने क्या बोला, रेफर टू प्राइमरी कर सकते हैं और शंट जो में ब्रांचेस में जो लॉसेस हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन केवल कैसा हो जाएगा, एक रिएक्टेंस और एक रेजिस्टेंस। ये केवल ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करके केवल इस फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं। अगला एलिमेंट क्या लगा वो दिख रहा है हमको, ये रेड बॉक्स में इंसर्कल किया जो मैंने, ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन ही तो थी अगली। तो ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एनोटेशंस में हम क्या कर रहे हैं, शंट को नेग्लेक्ट कर दें। अगर शंट को नेग्लेक्ट कर दें तो केवल क्या बचेगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन। अगले उस पर आते हैं। फिर एक ट्रांसफार्मर है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी है, फिर मैग्नेटाइजेशन एंड कोर लॉसेस का एलिमेंट दिख रहा है। लॉसेस शंट में जो है वो फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर सेकेंडरी को प्राइमरी पर रेफर कर दें। इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा रिड्यूस हो जाएगा, केवल एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर नंबर 2। उसके बाद मशीन जो लगी है वो एज इट इज रहेगी, रोटेटिंग मशीन। जनरेटर नंबर EG3 लिख दे रहे हैं और जो लोड नंबर B है वो भी एज इट इज रहेगा, R और X। तो ये हो गया काफी रिड्यूस्ड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ ट्रांसमिशन मॉडल थ्रू द रिएक्टेंस डायग्राम। अब इसी को हमें इम्पिडेंस डायग्राम बना है, इसी को में रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होगा तो क्या कर देंगे, जहां जहां भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे एलिमिनेट कर देंगे, तो दिस विल क्विकली बिकम रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टेंस डायग्राम अ बिट मोर। तो रिएक्टेंस डायग्राम करने के लिए हमें क्या कहा, हमने रिएक्टेंस डायग्राम के बनाने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमने कॉमनली एनोटेट करी, कि सारे शंट को रिमूव कर दीजिए, एडमिटेंसेस को, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंसेस को रिड्यूस कर दीजिए, सारे स्टैटिक लोड भी रिमूव कर दें और सारे रेजिस्टेंसेस भी रिमूव कर दें। तो अभी पिछले में मैंने जो इक्विवेलेंट का जो लॉसेस वाला कंपोनेंट हटाया था उसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस भी हटा दें, तो अब देखो डायग्राम में यही बचेगा। जनरेटर नंबर 1 का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था, रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होगा तो केवल रिएक्टेंस बटा। जनरेटर नंबर 2 का सप्लाई, रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो गया, केवल रिएक्टेंस बटा। यहाँ था लोड A, लोड कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो जाएगा, स्टैटिक लोड है इसलिए, तो लोड गया। उसके बाद क्या था, ट्रांसफार्मर। अब रेफर करके हमने शंट में मैग्नेटाइजेशन लॉसेस अब नेग्लेक्ट किए थे तो क्या हो गया, केवल
रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस फिर नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या बचा, केवल रिएक्टेंस। ये किसको डिनोट कर देगा, ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 को। ट्रांसमिशन लाइन में शंट वैल्यूज हमने रिमूव कर दी थी, रेजिस्टेंस को भी रिमूव कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्या बचा, केवल और केवल रिएक्टेंस। देख रहे हैं आप हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइंस को सिंपल एक रिएक्टेंस में रिप्रेजेंट कर दिया। हाउ इजी द सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन नाउ हैव बिकम। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसफार्मर नंबर 2 का भी यही काम है, रेफर टू प्राइमरी किया, शंट लॉसेस इग्नोर किए, रेजिस्टेंसेस इग्नोर किया, बच ही क्या गया, केवल और केवल एक रिएक्टेंस। उसके बाद थर्ड रोटेटिंग मशीन थी तो सप्लाई वैल्यू और एडमिटेंस, रेजिस्टेंस को फिर से इग्नोर किया। इसके बाद क्या था, स्टैटिक लोड, लोड बी, तो स्टैटिक लोड कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास क्या निकल कर आ गया, रिएक्टेंस डायग्राम। So it is very easy to draw a reactance diagram from the given one line diagram or impedance diagram from the given one line diagram. What next are we supposed to do? We are supposed to write the values also now. How will we write the values? We will write the values in the format of per unit system only. So let's quickly see an example of that. We'll take a short example here. See here what are we supposed to do? यहाँ पर एक वन लाइन डायग्राम दिख रहा है टॉप पोर्शन पर, उसी का रिएक्टेंस डायग्राम बना है, फाइनल आंसर है जो ना बॉटम टैब पे आपको डायग्राम दिख रहा है। जो टॉप पर डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये एक पावर सिस्टम है जिसमें वी हैव द वैल्यू ऑफ बेस MVA एज 100 MV एंड बेस वोल्टेज एट 200 kV. द ट्रांसमिशन लाइन इज अ 50 ohm ट्रांसमिशन लाइन, राइट। एंड जितने भी जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनका स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन्ड है। सी हियर, जनरेटर है, यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, मोटर है। जनरेटर का MVA गिवन है, जनरेटर का वोल्टेज लेवल गिवन है, जनरेटर का सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस गिवन है इन परसेंटेज, मतलब पर यूनिट में है। अब ये X डबल डैश इज कॉल्ड एज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। व्हाट इज इट, वी विल डिस्कस दिस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस यूनिट. For right now, please assume that we are annotating admittance in terms of sub-transient या impedance in terms of sub-transient reactance in rotating machine here. ठीक है, सिमिलरली मोटर ये M जो है उसका भी हमारे पास MVA रेटिंग गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है, अगेन ओल्ड बेस पर यूनिट की वैल्यू गिवन है. सेम गोज विथ ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 एंड ट्रांसफॉर्मर नंबर 2. ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 का MVA गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज का प्राइमरी टू सेकेंडरी कितना है वो गिवन है, 33 स्टार कनेक्टेड है, 220 स्टार कनेक्टेड है, दे आर इन केवीज ओनली. और ओल्ड पर यूनिट वैल्यू में एडमिटेंस नहीं सॉरी इम्पिडेंस जितना भी आया है वो मेंशन्ड है. ठीक है, सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 के लिए भी वैल्यूज गिवन है एंड द लोड इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, 11 kV 50 मेगावाट और J68 MVAR. रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो गिवन, मतलब पावर का रियल एंड रिएक्टिव टर्म गिवन है. ठीक है, नाउ व्हाट आर वी आस्क्ड टू डू, वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम. चलो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं. वैल्यूज के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा वो रख के वैल्यूज निकालने की कोशिश की जाए. सी हियर, जनरेटर का वन फेज रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम. प्लीज रिमेंबर रेजिस्टेंसेस यूज नहीं करेंगे. क्या बनाए, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज एंड admittance impedance, that too in per unit values. So we have represented, see here, this term generator EG and value of reactance in per unit. How will we calculate reactance value? So we will be using the formula of old base when converted into new base. तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 20% 0.2 into MVA new upon MVA old. MVA new is 100 MVA. MVA ओल्ड कितना है, इस जनरेटर का MVA कितना है, ये 40 इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू. KV ओल्ड कितना है 25, KV न्यू कितना है 220 KV, तो डिवाइडेड बाई 220 होल स्क्वायर. ठीक है, दिस विल गिव द वैल्यू 0.287. ठीक है, क्या मिल गया हमको, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मिल गया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर पर. बस बार के बाद इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मर लगाए. बस बार क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दे रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा है, इसलिए उसका कोई एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पर आ गए. ट्रांसफॉर्मर को क्या बोला हमने, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिर्फ एक रिएक्टेंस से.
आइदर इट बी रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर नंबर 1 के लिए MVA रेटिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी का वैल्यू गिवन है, रिएक्टेंस का गिवन है। नाउ वी हैव टू क्विकली सी जो बेस वैल्यू अभी हमें मिली है वो किस साइड के अराउंड ज़्यादा है। तो देखो आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर नंबर 1 के सेकेंडरी पर है, तो इट इज़ मच बेटर कि हम सेकेंडरी पर रेफरेंस लें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और हमें बेस चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को वायलेट ये नहीं कर रहा है। फॉर्मूला फिर यहाँ पर ओल्ड और न्यू वाला ही लगेगा, तो 15% 0.15, MVA न्यू इज़ 100, ओल्ड इज़ 40, हियर वी गेट 220 डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर 0.375। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। क्या बोला, क्या ट्रांसमिशन लाइन है, 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन है। क्या करें, एक्चुअल वैल्यू गिवन है तो पर यूनिट में निकालने के लिए एक्चुअल अपॉन बेस, बेस के लिए वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MVA, तो 50 डिवाइडेड बाई वोल्टेजेस का स्क्वायर विच इज 220 का होल स्क्वायर इंटू 100। दिस विल गिव कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंटू the reactance value and we will represent it in the reactance diagram. The value comes out to be 0.1033. ठीक है, now other half of the circuitry, what is that, transformer number 2। तो ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 यहाँ पर सेम नहीं है, देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर 1 एंड ट्रांसफॉर्मर 2 जो प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड, देयर वी हैव ओनली रिटन द सेम थिंग बिकॉज वहाँ रिएक्टेंस भी सेम था, वहाँ पावर रेटिंग भी सेम थी, यहाँ अलग अलग हैं। तो हियर वी हैव टू पे अटेंशन कि इस ट्रांसफॉर्मर का गिवन पावर रेटिंग 30 MVA है, तो वी विल हैव टू चेंज द फॉर्मूला। यहाँ पर रिएक्टेंस पर यूनिट निकालने के लिए ओल्ड की वैल्यू 0.15, 100 अपॉन 30, 220 by 220 का होल स्क्वायर, what we can get is x की वैल्यू again which is here coming out to be 0.5. Finally the motor, how to solve that? मोटर को फिर से हमने किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, मोटर के रिप्रेजेंटेशन उसके वोल्टेज में और रिएक्टेंस में। मोटर की रिएक्टेंस के लिए अगेन हमारे पास क्या गिवन है, ओल्ड बेस का वैल्यू गिवन है, तो 0.3 इंटू न्यू बेस इज 100, ओल्ड बेस इज यहाँ पर कितना गिवन है मोटर का 50, तो 100 by 50 इंटू ओल्ड वोल्टेज यानी 11 डिवाइड बाई न्यू इज 220, तो 11 by 220 का होल स्क्वायर, वी विल गेट द वैल्यू एज 0.6. तो सिंपली वी कैन सॉल्व इट. लेट्स क्विकली जंप इनटू अनदर न्यूमेरिकल. हियर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक इंटरकनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, सारे स्पेसिफाइड वैल्यूज गिवन है. ठीक है, जनरेटर 1 2 3 तीन जनरेटर दिख रहे हैं हमको. वी विल सी हियर जनरेटर नंबर 1, जनरेटर नंबर 2 and this is generator number 3. 3 generators are shown. Transformers are shown 1 2 3. Two kinds of transmission lines are shown जिनका एक्चुअल वैल्यू गिवन है 100 ओम एंड 150 ओम. बाकी सब ओल्ड पर बेस पर गिवन है. हमें बोल रहा है रिएक्टेंस डायग्राम बनाओ जब MVA बेस 50 MVA हो जाए, वोल्टेज लेवल 11 kV हो जाए. ठीक है, जनरेटर 1 का वैल्यू लिया है हमने यहाँ पर, देख लो 50 और उसके लिए 11 kV. ठीक है, जनरेटर 1 के लिए बेस लिया है 11 kV बिकॉज वी माइट फील द नीड ऑफ चेंजिंग द बेस फॉर अदर वोल्टेजेस एज वेल. ठीक है, सो लेट्स क्विकली सॉल्व. सबसे पहला एक एंड से शुरू करते हैं. जनरेटर नंबर 1, न्यू ओल्ड बेस में ऑलरेडी गिवन था. न्यू बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए XG पर यूनिट में निकालना पड़ेगा जनरेटर का रिएक्टेंस. फॉर्मूला क्या होगा, 25% था ना, तो 0.25 इंटू न्यू MVA इज 50, ओल्ड MVA जनरेटर का था 20, तो 50/20 इंटू वोल्टेज का ओल्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय न्यू वोल्टेज, तो दोनों ही 11 है यहाँ पर, 11/11 का होल स्क्वायर. ये हमें क्या दे देगा, जनरेटर नंबर 1 इसका रिप्रेजेंटेशन मिल गया, वोल्टेज के साथ इसका रिएक्टेंस मिल गया. रिएक्टेंस डायग्राम में अगला स्टेप बढ़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, ट्रांसफॉर्मर के लिए. ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या करें, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 15% या 0.15 पर यूनिट, तो 0.15 इंटू new MVA is 50, old MVA was 25 given in the question, तो 50 divided by 25. वोल्टेज लेवल क्योंकि मैच कर रहा था ट्रांसमिशन लाइंस का बेस वैल्यू का ट्रांसफॉर्मर के साथ, तो वी डोंट फील द नीड टू चेंज. सो 11/11 का होल स्क्वायर. क्या मिल गया हमको यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 का भी रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस डायग्राम में केवल एक वाइंडिंग से तो रिप्रेजेंट होगा रिएक्टेंस से. आगे बढ़ते हैं. ट्रांसमिशन लाइन नंबर दिस,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमें पर यूनिट निकालना पड़ेगा इम्पिडेंस का, और पर यूनिट क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। बेस वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस वोल्टेज फिर से कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो कैसे कर रहे हैं? वैल्यू जो कैरी कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन इनटू टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी 220 था, सेकेंडरी 11 था, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ बेस एज 220। सी हियर, यही बात करी थी मैं कि बेस को चेंज करना पड़ेगा। अब वोल्टेज बेस दूसरा मिल गया, पावर बेस हमें पता ही है, फॉर्मूला रखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में वैल्यू नहीं मिल जाएगी एक्स की, और हम एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बेस वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेम काम हम इधर के साइड से भी कर सकते हैं, इस वाले जनरेटर के लिए और इस वाले ट्रांसफार्मर के लिए। इस वाले जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए फिर से देखो हमने ओल्ड और न्यू वाला ही फॉर्मूला रखा है। वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज बेस 220, ट्रांसमिशन लाइंस इधर से कनेक्टेड है, ये ट्रांसफार्मर 220 kV का था, तो 220 यहाँ पर हमें बेस वैल्यू है हमारी, क्योंकि इधर के लिए हमने इस साइड से बेस क्या ले लिया था अभी ट्रांसमिशन लाइन के साथ ही, 220 वोल्ट ना, तो 220 वोल्ट बेस है। ये ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो में 220 आ रहा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू मिल जाएगी, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जनरेटर पर आते हैं। जनरेटर नंबर 2, इसके लिए फिर से वही काम, ओल्ड वैल्यू इंटू न्यू एमवीए डिवाइड बाई ओल्ड एमवीए इंटू वोल्टेज रेशियोज, हमें एग्जैक्टली जनरेटर नंबर 2 के लिए मिल जाएगी। सेम गोज विथ ट्रांसफार्मर नंबर 3, ट्रांसमिशन नंबर लाइन नंबर 2 एंड जनरेटर। हमें बस केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर के साथ और ट्रांसमिशन लाइन के साथ जब भी हम वोल्टेज बेस दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा ट्रांसमिशन लाइन कोई और वोल्टेज लेवल कैरी कर रही है और हम कोई और ही बेस का से कैलकुलेशन करने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक सो, कि ट्रांसमिशन लाइन तो 220 कैरी कर रहा था, बेस हमारा अब ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो वो 18 और 220 में वोल्टेज लेवल का कन्वर्जन है, तो हमें वो मल्टीप्लाई करके न्यू बेस निकालना पड़ेगा वोल्टेजेस का। पावर बेस हाउएवर इज सेम फॉर द इंटायर सिस्टम, इट मे वैरी अकॉर्डिंग टू द नीड, बट इन जनरल केसेस वी टेंड टू टेक द बेस वैल्यू ऑफ दैट जनरेटर जिसका एमवीए रेटिंग सबसे ज्यादा होता है। सो द प्रॉब्लम अगेन गेट्स रिजॉल्व्ड। I hope this is clear with one and all, and now you can take any example of any one line diagram to practice and solve, and you can easily represent any complex interconnection which is represented via single line diagram through a reactance diagram or an impedance diagram. The point we have to consider is we have to draw the equivalent diagrams, we have to calculate the per unit values and represent every single thing on the diagram itself. Okay, I think that is it for this lecture. It needs a lot of practice, and practice will make you perfection in this, and it will become very easy to represent the system here forward. Now from here forward we will be taking on to a next level of this calculations, but that we will be doing in the upcoming lecture. Thank you so much.